Sajida Rashid with BS Zoology and BS Chemistry second semester. Today our lecture number 9 with Principle of Animal Life 2. Our topic of discussion is significance of meiosis. Actually in the previous lecture we have discussed mitosis and meiosis. There are different two types of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2, and today we have to discuss about what is the significance, what is the importance of meiosis, meiosis की क्या importance है, meiosis के result में कौन सी variations आती हैं, कौन सी changes आती हैं, offspring कैसे produce होते हैं, what is the genotype and what is the phenotype. So today we have to discuss about the significance of meiosis. First one, constant chromosome number. In the case of meiosis, as a result of meiosis there will be constant chromosome number. जो chromosome के number हैं वो constant रहेंगे as such to their parent. जैसे उनके पेरेंट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, बिल्कुल इसी तरह इनके डाटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम. कांस्टेंट मीन इट विल बी सेम. meiosis results in the formation of 4 daughter cell. So you know in the case of meiosis there are 4 daughter cells produced, while in case of mitosis only 2 daughter cells are produced, each with half number of chromosome. अब 4 daughter cell में number of chromosome will be half. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है, द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, द न्यूक्लाई ऑफ द टू गैमीट सेल फ्यूज. दोनों न्यूक्लाई स्पर्म सेल एंड एग सेल विल फ्यूज विद ईच अदर बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस. द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड cytokinesis, and while the division of nucleus chromosome it will be called karyokinesis. So both procedure will be done during this phase, cytokinesis and karyokinesis. During fertilization the nuclei of two gamete cell fuse and produce a zygote which has a diploid number of chromosome for a particular gene. So the finally offspring have diploid number of chromosome, as such their parents have also diploid number of chromosome. So there was our first significance, constant number of chromosome. chromosome के number जो हैं वो constant रहते हैं as a result of meiosis. अब जो second हमारे पास characteristics है, second significance है of meiosis, genetic variation. So genetic variation वरासती खसूसियात में तब्दीलियाँ आती हैं, changes आती हैं, ज़्यादा chances होते हैं changes आने के as a result of meiosis. Genetic variation, meiosis also provides opportunities for new combination बनते हैं of genes to occur in the gamete cell. जैसे हमारे पास gamete cell बनते हैं, gamete cell mean egg cell and sperm cell, तो जैसे इनकी genes formation होती है, gamete cells बनते हैं, तो इनकी variation के chances increase होते हैं due to meiosis. This lead to gene variation in the genotype and phenotype. So there is a short question, what is the difference between genotype and phenotype? The genetic makeup of an individual, किसी भी इंसान की वरासती खसूसियात जो हैं वो उसका हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम DNA, इट विल बी कॉल्ड जीनोटाइप. वाइल उसकी जो फिजिकली अपीयरेंस है कि वो हाइटेड है, वो ड्वार्फिज्म है, उसका कलर कैसे है, उसकी हाइट कैसी है, ये उसकी जो फिनोटाइप है, दैट विल बी कॉल्ड physical appearance, while genetic makeup is called genotype and physical appearance is called phenotype. So there is a very important short question. Write down the difference between genotype and phenotype. Offspring produced by the fusion of gamete. जैसे ही different gametes fuse करते हैं, sperm cell and egg cell, after the fusion of gametes there will be the formation of a zygote, and this zygote will be diploid like to their parents. अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ द वेरिएशन अकर ड्यू टू फॉलोइंग प्रोसेस. कहने बेटा वेरिएशंस क्यों आती हैं. अब माइटोसिस के केस में वेरिएशंस नहीं आती, मेयोसिस के केस में वेरिएशंस क्यों आती हैं. एक इंडिविजुअल के ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट क्यों होते हैं, या फिर एक ही पेरेंट के डिफरेंट ऑफस्प्रिंग आपस में क्यों मुख्तलिफ होते हैं, उनका कलर क्यों चेंज होता है, उनकी वेरिएशंस क्यों आती हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं फॉर दी production of variation. So there is also very important long question as well as short question. Reasons क्या हैं variations लाने की. सबसे पहले first reason, first cause, crossing over of segments of chromatids occurs between homologous chromosome during प्रोफेज 1. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोफेज 1 की डिस्कस की थी कि एक क्रोमोसोम के जो होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, एक पॉइंट बनेगा जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मेटा. एज यू नो बाय
explain it by the example. Let's suppose we have 2 diploid chromosome and having 4 sister chromatids. There is a single chromosome and there will be a second chromosome. After the process of crossing over, their segments will be changed. A point will form that will be crossing over. क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा कि इसके जो पॉइंट्स हैं क्रोमेटिड्स आपस में अपने सेगमेंट्स को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और इसी तरह एक क्यासमेटा की फॉर्मेशन होगी। क्यासमेटा वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे इनके सेगमेंट आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे क्यासमेटा के फॉर्मेशन की वजह से इनके होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमेटिड्स विल बी चेंज like that you see in the diagram. As you see in diagram, we have 2 diploid number of chromosome. होमोलोगस क्रोमोसोम में जैसे इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज करेंगे, एक पॉइंट विल बी फॉर्म, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड क्यासमेटा। और क्यासमेटा के पॉइंट पे एक क्रोमोसोम जो है अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे अपने होमोलोगस क्रोमोसोम लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से एक्सचेंज करेंगे। और आफ्टर एक्सचेंज देयर विल बी अ डिफरेंस। उसने अपना सिस्टर क्रोमेटिड उसके साथ एक्सचेंज कर लिया, सिमिलरली दूसरे क्रोमोसोम ने अपना सिस्टर क्रोमेटिड अपने फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज कर लिया। इसी तरह जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जो जाइगोट बनेंगे, इट विल बी डिफरेंट जीनोटाइप। सो दे विल बी क्लियर आफ्टर दैट डायग्राम। क्रॉसिंग ओवर सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज 1। जैसे ही प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन होते हैं तो उनके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है और वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड रीज़न क्या है वेरिएशंस की, द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम segregates alleles so that each gamete carries only one allele for a particular gene locus. जैसे ही हमारे पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं, तो उनमें एक अलील जो है वो हर डाटर सेल में माइग्रेट कर जाएगी। और इसी तरह एक डाटर सेल में जो अलील्स आएंगी और एक पेरेंट से, एक पेरेंट मेल और दूसरे पेरेंट फीमेल से, देयर विल बी अ वेरिएशन ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की रिडक्शन की वजह से, हैप्लॉइड होने की वजह से डिफरेंट क्रोमोसोम जब ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे तो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ वेरिएशन। आफ्टर दैट थर्ड रीज़न, दैट इज़ द लास्ट रीज़न ऑफ वेरिएशन, द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट इन द मेटाफेज 1 स्टेज। जैसे ही मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे खुद को अलाइन करते हैं, देन क्या होता है, इन द मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2 इज़ रैंडम। It's mean there is independent assortment of maternal and paternal chromosome between daughter nuclei। जैसे ही वो अपने इक्वेटर पे खुद को अलाइन करते हैं और एनाफेज के प्रोसीजर के बाद वो अपने इक्वेटर पे अपने पोल्स पे जाते हैं तो देयर विल बी चांसेस ऑफ वेरिएशन। तो फिर एक क्रोमोसोम जो है वो एक डाटर सेल में जाएगा और उसका दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड पार्ट जो है वो एक दूसरे डाटर सेल में जाएगा। और सिमिलरली एवरी डाटर सेल है जो है वो अपने 2 पेरेंट्स से डिफरेंट क्रोमोसोम जब रिसीव करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वेरिएशंस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज significance of meiosis. I repeat it again, there are 2 significance of meiosis. First one, constant number of chromosome. In the case of meiosis, number of chromosome will be same, will be constant as during the formation of 4 daughter cells. जैसे ही 4 daughter cells की formation होती है, every daughter cell जो है वो half number of chromosome receive करता है। But after the fusion of gametes, egg cell and sperm cell, there will be the formation of zygote, and zygote having diploid number of chromosome as such to their parents. Parents also have diploid number of chromosome.
सो हमारी सेकंड जो करैक्टरिस्टिक थी वो थी जेनेटिक वेरिएशन, चेंजेस आती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस क्यों आती हैं कि मियोसिस के केस में कॉम्बिनेशन होते हैं और डिफरेंट जीन जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो उनकी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑटोमेटिकली डिफरेंट होती है। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन था कि वेरिएशंस क्यों आती हैं, व्हाट आर द काजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो फर्स्ट वन क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड ना सिस्टर क्रोमैटिड्स, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, क्याज़मेटा पॉइंट्स की फॉर्मेशन होती है और इसी तरह वेरिएशंस इंक्रीज़ होती हैं। सेकंड पे हमने बात की थी कि जैसे ही डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं अपने डॉटर सेल्स में, सिंगल अलील जाती है, सिंगल क्रोमोसोम जाती है और फिर अपने डिफरेंट पेरेंट से एक डॉटर सेल जो है अपने दो डिफरेंट पेरेंट मेल और फीमेल से जब डिफरेंट क्रोमोसोम रिसीव करता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो जेनेटिक मटीरियल है इट विल बी डिफरेंट फ्राम देयर पेरेंट्स एज वेल एज फ्राम देयर डिफरेंट सिस्टर्स। लाइक दैट अगर एक पेरेंट है और उसके 2 या 3 ऑफ स्प्रिंग हैं तो वो 2-3 ऑफ स्प्रिंग आपस में ज़रूरी नहीं कि वो एक जैसे होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। वो डिफरेंट क्यों होंगे? ड्यू टू वेरिएशंस कॉज बाय क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। आफ्टर दैट लास्ट हमारे पास जो रीज़न है ऑफ द वेरिएशंस ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद जो है वो वेरिएशंस क्यों आती हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मियोसिस। तो थर्ड कॉज जो है कि द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ही हमने मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2 में ये डिस्कस किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब इक्वेटर पे खुद को अलाइन करते हैं और अलाइन करने के बाद ड्यूरिंग एनाफेज अपने डिफरेंट अपोजिट पोल्स की तरफ जब जाते हैं तो देन फ्यूजन होती है, डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। बोथ प्रोसीजर विल बी डन cytokinesis and karyokinesis and automatically the offspring will receive different number of chromosomes from their parents and there will be the chances of variation increase. So I hope so you understand this lecture. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.